Today we are going to learn formal invitation, and in many situations we inform many people that there is a particular program in our house or anywhere else that you have arranged. It's a formal way to invite the people through invitation cards. Nowadays, most of the people do not believe in that form, but they inform them with the help of mobile phones, etc. And through social media, we send the messages concerning with the program. But in the examination, there is a part that shows the formal invitation. We have to learn the format, how to write a particular invitation, and all these things. Keeping in mind the viewpoint, let us learn something for writing the formal invitation. Formal and informal invitations are there. Formal invitation is official and personal. It doesn't mean to show formality, but it is reality. Some people do not attend the program without getting any invitation through cards. That is a proof. Voice messages are not concerned, and so we have to learn this for earning marks in the examination. So let us see what is the format of formal invitation and so on. So first we want to know what is a formal invitation. A formal invitation is a written request to invite someone to join you at a specific event or occasion. A formal invitation is a written request to invite someone to join you at a specific event or occasion. Normally, formal invitations are given to relatives, familiar persons, friends, and others on the occasion of marriages, birthdays, inauguration ceremony of a newly constructed house, annual day celebration, ball cutting ceremony, public gathering, etc. etc. बाल कटिंग सेरेमनी में मुंडन सेरेमनी, तो कुछ लोग इसको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है. सो formal invitations are given to relatives, familiar persons, friends, and special persons, we can say, and others on the occasion of marriage ceremony, birthday ceremony, inauguration ceremony of newly constructed house, annual day celebrations of the schools, public gatherings, etc. So a formal invitation is a written request to invite someone to join at a specific event or a program or occasion or etc. Formal invitations are given to relatives, non-persons, friends, and others on the occasion of marriages, birthdays, inauguration ceremony,
of newly constructed houses, public gatherings, Balmundan ceremony, annual day celebration of the school, or dance festivals, drama festivals, not common festivals but drama festivals, fashion show ceremony, etc., etc., etc. Before writing a formal invitation, we have to remember some points. Okay, always write a formal invitation in the third person. To know that, we have to know third person. In grammatical section, we can see three persons in English: first person, second person, third person. First person, second person, and third person. Already you know, without a person, you cannot say or see or learn anything from grammar portion. The basic thing that we want to learn is the persons: the first person, second person, third person. First person includes I and its form, we and its form. Second person, you and its form. And third person, he, she, it, they. That we have seen here. Always write a formal invitation in the third person. Do not use the first and second person. That means, it means that you do not use a first person or a second person. For that we should know first person and second person. The person who says something, first person. The person says something to whom is second person. And the third person to whom we explain about, that is called the third person. Telling person, first person. Hearing person, second person. To whom we say, third person. बोलने वाला, first person. सुनने वाला, second person. जिसके बारे में बताते हैं, वो third person that we have learned before learning tense. So you have to write the invitation in third person, and somebody writes for you. Suppose your marriage is going to take place. Some other person will frame the invitation. और किसी की शादी किसी के साथ होने वाला है, उसके माँ बाप ये वो सब कुछ थर्ड पर्सन में लिखते हैं. फर्स्ट पर्सन में चाहिए तो बुला सकता है, वो तो फॉर्मेट अलग हो जाते फिर. तो कॉमनली ये कहते हैं, वो लिखते हैं ना, तो किसी के माता पिता अपनी बेटी की शादी किसी और के बेटे के साथ करना चाहते हैं कि इस तरह से मैसेज आता है. एंड यू विल गेट द एग्जाम्पल for practice, and you can learn the thing, and then you can understand what is that. Some particular words are there that you have to give focus. So always write the formal invitation in third person. Do not use a short form of place or title etc. जगह का नाम, टाइटल का नाम शॉर्ट फॉर्म में नहीं देना. यूज़ सिंपल लैंग्वेज, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, सो यूज़ सिंपल लैंग्वेज. मेन पॉइंट शुड बी हाईलाइटेड एंड इट मस्ट बी अट्रैक्टेड. अट्रैक्ट करने के लिए कैसा लिखते हैं आप लोग जानते हो, चीज़ों को हाईलाइट करना पड़ता है. अब परीक्षा में लिखते समय हाईलाइट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो सम ट्रिक यू हैव टू यूज़ इन योर प्रैक्टिस दैट यू कैन मेक इट अट्रैक्टिव. जैसे हम
एडवर्टाइजमेंट देखा है, पोस्टर देखा है, उसमें हम चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए सीखा है. इन द सेम वे you have to highlight some items in this invitation. So main points should be written in attractive ways and highlighted. Write name and address of the inviter with a mobile phone number below RSVP. इसमें एक चीज़ लिखना होता है RSVP, that you will see in the example, and where you have to write the word or the short form RSVP and all these things. RSVP लिखने के बाद आपको you have to show the name and address of a particular person with a phone number. Nowadays phone number important है, लेकिन when you write the examination you do not give the personal phone number to anybody through writing. जो भी है 10 डिजिट्स नंबर आने वाला कोई सा भी एक फ़ोन नंबर डाल देना, इतना तो आता होगा, तो वो करना भी पड़ता है. ये नहीं बोलोगे तो मुझे किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं आ रहे, बाकी दुनिया की सारी बातें याद रहते थे लेकिन फ़ोन नंबर बनाने नहीं आता, वो कोई नहीं माने. So do this thing. You have to write the word RSVP. On the same line you have to write with the best compliments from. उसका स्पेलिंग वगैरह सबका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा तो अच्छा है, वो सेंटर से राइट साइड में जाना है, वो दैट यू विल गेट फ्रॉम द एग्जाम्पल. One thing I have told you that below RSVP you have to write the name of a person with address and a phone number. And on the right side where you write with the best compliments, below that उसका नीचे you can write friends and relatives or name of one person and name of more than one person, or sometimes we write kin and kith, नन्हे मुन्ने जो बच्चों के तरफ से जो बुलाया जाता है, तो वही है. तो सबसे पहले तो मैंने बताया था फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ये तैयार किया है. ये जो भी है बस एक ही लिखना है. फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एक साथ लिख सकता है, फ्रेंड्स लिख सकता है अकेले, रिलेटिव्स लिख सकते हैं अकेले, और नेम ऑफ वन पर्सन, नेम ऑफ मोर दैन वन पर्सन. और इस तरह से अगर छोटे छोटे बच्चे के द्वारा बुलाया जाता तो हम किन एंड कित का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें किन एंड कित का मतलब नन्हे मुन्ने बच्चे, दैट यू विल गेट इन द एग्जाम्पल. And finally you have to remember that the invitation must be put in a box. एक बॉक्स में डालना होता है. जब आप आजकल के हिसाब से जब इनविटेशन तैयार करते हैं तो किसी किसी के यहाँ से बारात आ जाते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो. द बारात विल प्रोसीड फ्रॉम, बारात कहाँ से शुरू होगा, तो यू हैव टू डिसाइड कहाँ से होता है. बारात वैसे किसके आता है, लड़कों के आता है घोड़ी के ऊपर बैठ के. तो इस तरह से वो अपने इधर आता है, उसको स्वीकार करने के लिए हमको भी तैयार रहना पड़ता है. तो इसलिए तो हम ये एक अलग पॉइंट इन्वर्टेड कॉमा में दे सकते हो लास्ट में. बारात को इंग्लिश शब्द ढूंढ के निकालना पड़ता है, वैसे तो मैरिज प्रोसेशन कहता है, और मैरिज प्रोसेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कोई ज़्यादा जानते ही नहीं है. वो हिंदी शब्द ही इंग्लिश में स्पेलिंग लिख के यूज़ कर सकते हो. तो नाउ कम टू द पॉइंट. On the first line we have to write Mrs. and Mr. Mrs. short form है MRS, उसके बाद डॉट लगाना. एंड अगर निशान लगाने आता है एंड का तो निशान लगाना, नहीं है तो AND एंड पूरा लिखना. उसके बाद मिस्टर. कुछ लोग मिस्टर एंड मिसेस लिखते हैं, नो, आपको लिखना है मिसेस एंड मिस्टर. किसी का भी नाम दे देते. शॉर्ट फॉर्म जहाँ भी लिखें तो आई हैव टोल्ड यू दैट आफ्टर दैट यू हैव टू पुट ए डॉट.
शॉर्ट फॉर्म के साथ हमेशा जहाँ भी लिखे वहाँ डॉट लगाना होता है। आपको लिखना है मिसिस एंड मिस्टर BL मालपानी में जो बना रखा है एग्जाम्पल, ये एक लाइन में होना चाहिए, उस लाइन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब इस लाइन का सेंटर में होना चाहिए दूसरा लाइन, उसका बराबर भी लिख सकते हैं, उसका आर पार भी जा सकता है। वो तो जितना आप लिखोगे आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, मैं उसके बराबर में रखूं या थोड़ा सा लेफ्ट साइड से जाकर थोड़ा सा राइट साइड तक जाने का सिस्टम आपको खुद ढूंढना है। तो वो प्रैक्टिस में होता है एकदम। अगर स्टार्टिंग से उसी का नीचे लिखना शुरू किया तो लास्ट वर्ड है ना मालपानी लिखने के बाद आपको आगे नहीं जाना है, वहाँ रोकना है। मतलब ईच लाइन मस्ट बी इन द सेंटर ऑफ द अदर लाइन, ये ध्यान देना। तो मिसिस एंड मिस्टर BL मालपानी रिक्वेस्ट द प्लेजर एंड प्रेयर ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन, ऑन द ओकेशन, ऑस्पिशियस ओकेशन, ओकेशन जो भी है, ये सब का हमारे मैटर है। मैटर आपको जहाँ काटना है वहाँ काट के दूसरा लाइन में पहले वाला लाइन के सेंटर में लिखते हुए आगे बढ़ना है। तो मिसिस एंड मिस्टर BL मालपानी रिक्वेस्ट द प्लेजर एंड योर बिनाइन प्रेजेंस और कंपनी ऑन द ओकेशन और ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर लिखना है। आपको लिखना देयर, उससे पता पड़ जाए थर्ड पर्सन में जा रहे मैटर। मिसेस एंड मिस्टर ML मालपानी रिक्वेस्ट द प्लेजर एंड योर बेनिग्न प्रेजेंस और कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर। लड़के की शादी है तो सन, लड़की की शादी है तो डॉटर। तो मैरिज ऑफ देयर डॉटर या सन जो भी है लिख के वो लाइन वहीं ख़त्म करना। नेक्स्ट लाइन में लड़के का नाम है तो लड़के का नाम, लड़की का नाम है तो लड़की का नाम हाईलाइट करना है। जैसे ऊपर ऊपर मिसेस एंड मिस्टर BL मालपानी जो मैंने जो बताया उसको हाईलाइट करना है। और अभी आ गया तो लड़की का नाम, इसमें मैं तो डॉटर लिखा और डॉटर शब्द लिखा है इसलिए लड़की का नाम पहले आएगा, वो तो बिल्कुल हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने का एक ही तरीका है, थोड़ा मोटा अक्षर में बड़ा अक्षर में कैपिटल लेटर में लिखो तो हाईलाइट हो जाता। उसका नीचे उसके सेंटर में लिखना विथ, ये तो कैपिटल नहीं लिखना, शॉर्ट स्मॉल लेटर में लिखना विथ दुष्यंत मालपानी, ये लड़के का नाम है जिसके साथ शादी होने वाला है, वो भी हाईलाइट करना विथ के सेंटर वाले पोर्शन में नेक्स्ट लाइन में। अब लड़की हमारे लिए परिचित है तो लड़के का जानकारी देना है, किसका बच्चा है, कहाँ का रहने वाला है। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे सन ऑफ मिसिस एंड मिस्टर NK मालपानी 35/75 शास्त्री नगर कोटा राजस्थान। ये उसका पूरा एड्रेस, पेरेंट्स का नाम दिया है मिसिस एंड मिस्टर NK मालपानी, फिर एड्रेस पूरा देना और उसके बाद ब्रैकेट बंद करना। इसमें भी एक एक लाइन दूसरा लाइन का सेंटर में होना चाहिए। आपको एड्रेस भी जहाँ भी काटना है वहाँ पर आप काट सकते हो, लेकिन जो लाइन नेक्स्ट लिखें वो तो ऊपर वाला लाइन का सेंटर में होना चाहिए, इतना ध्यान देना। पहले मैंने बताया था इसको बॉक्स में डालना है, इसलिए कुछ लोग पहले बॉक्स बना देते हैं उसके बाद लिखते हैं, वो कभी नहीं करना। आपको लेफ्ट साइड में कितना जगह छोड़ना है, राइट साइड में कितना जगह छोड़ना है, तो लिखने के बाद आपको देखना है कि कौन सा लाइन सबसे लेफ्ट में गया, कौन सा लाइन सबसे लास्ट में गया, मतलब सबसे राइट में गया, उसी के हिसाब से आपको बॉक्स बनाना। ऊपर नीचे का तो कोई बात नहीं, पहले वाला जो लाइन है उसको ऊपर वाला लाइन, ऊपर का बॉक्स का लाइन, नीचे जब आप पूरा करोगे उसका नीचे वाला लाइन, जिस लाइन में लिखा उसमें नहीं है, उसके नीचे वाला लाइन में आपको बॉक्स का लाइन बनाना है। अब इतना तो हो गया, लड़के का जानकारी भी दिया, पापा मम्मी कौन है, एड्रेस क्या है लिखा। अब नेक्स्ट लाइन में जो बाकी बात कब होने वाला है, ऑन वेडनेसडे
द 25th of March 2022 at, ये भी उसी हिसाब से लिखना, पहले डे लिखना, फिर डेट लिखना, फिर ईयर लिखना, सॉरी मंथ लिखना, फिर ईयर लिखना, डे डेट मंथ ईयर, ये इस ऑर्डर में लिखना। डेट लिखते समय डेट के साथ TH लगाना। अगर आपको डेट इस तरह से लिखना है तो आप TH का प्रयोग करते हो तो उससे पहले दी और उसके बाद में ऑफ का प्रयोग करना। अगर आप डेट में STNDRD TH का प्रयोग करना चाहते हो तो यू हैव टू राइट द वर्ड दी बिफोर इट एंड द वर्ड ऑफ आफ्टर इट। ऑफ मार्च 2022 25th TH लिखा हुआ है इसलिए मैं पहले लिखा दी 25th of March 2022। फिर टाइम देना, जगह देना। अगर टाइम पहले लिखना चाहें तो पहले लिखें, जगह पहले लिखना चाहें तो जगह पहले लिखें। तो मैंने पहले जगह लिखा संजीवनी मैरिज गार्डन, वहाँ पर होगी शादी, उसका एड्रेस भी देना है। जो भी मैरिज गार्डन का या जहाँ भी आपका शादी होगा, जहाँ रखा है उसका नाम दे के उसमें पूरा एड्रेस देना है। एड्रेस इसलिए देना है तो क्योंकि लोग वहाँ पहुँच जाए। ये भी आपको पता होगा कि दोनों पक्ष क्या करता है, कार्ड तैयार करते हैं। द बारात प्रोसेशन मैंने पहले बोला था, बारात के लिए तो लिखना है तो लिख सकते हो, वो एग्जाम्पल में दे के समझ लेना। जो भी समझ में नहीं आया वो तो ऑफलाइन में आते समय डिस्कस करेंगे हम। हमारे मैटर ख़त्म होने के बाद लेफ्ट साइड में आपको लिखना RSVP, R.S.V.P. उसके नीचे किसी का नाम लिख के पूरा एड्रेस देना, फ़ोन नंबर भी देना। ये जो नाम लिखना है, एक तो हमने लड़की का नाम लड़के का नाम लिखा, वो नहीं होना चाहिए, और मिसेस एंड मिस्टर BL मालपानी लिखा, वो नहीं होना चाहिए। आपको इस परिवार के किसी के सदस्य का नाम देना होगा। उसके बाद उसका पूरा एड्रेस विथ फ़ोन नंबर देना होगा लेफ्ट साइड में। जिस लाइन में आपने RSVP लिखा, ऑन द सेम लाइन ऑन द लेफ्ट साइड आफ्टर सेंडर यू हैव टू राइट विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम। आप इसके आगे विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम लिखना। ये एक ही लाइन में होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक ही लाइन में नहीं आ रहे तो पहले ही दिमाग लगाना, मुझे एक ही लाइन में लिखना है। राइट साइड में जाते समय याद रखना, राइट साइड में बॉक्स भी बनाना होगा, वो कवर करके एकदम एंड तक लेके नहीं जाना। बॉक्स में लेफ्ट साइड में जितना जगह छोड़ेगा उतना जगह राइट साइड में भी होना चाहिए। ये भी पहले से डिसाइड कर लेना। और उसके बाद मैंने बोला विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम के बाद आपको लिखना फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एक तो मैंने बताया, बाकी यू विल गेट फ्रॉम दी अदर एग्जाम्पल। ओके, ये आपको अभी प्रैक्टिस करना, तैयारी करना है। एक एक शादी का एक एक मतलब 1 by 1 हम सीखेंगे। इसका रिप्लाई भी देना है, कैसे देना है। रिप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं, लेटर का रूम में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, पहले ये तो सीख लें। लेकिन फर्स्ट टाइम लिखते समय कंफ्यूज हो जाते, इधर गलत हो जाते उधर, ये इसलिए एक नमूने के लिए मैंने देगा। इफ़ यू हैव प्रैक्टिस बुक विथ यू एंड यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दैट एंड यू कैन राइट दैट ऑल्सो। यहाँ तो कुछ वर्ड ये कट के जाता है, वो तो अंदर लिखने वाली बात है, वो तो एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो ये नहीं सोचना है तो मैं बॉक्स काट के लिखे रहेगा, नहीं। और RSVP क्या होता है, इसका मतलब है प्लीज़ रेस्पॉन्ड या प्लीज़ रिप्लाई करके मैंने लिखा है साइड में। उसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, स्पेलिंग देख लेना। रेस्पॉन्ड सिल वाउस प्लेट लिखता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है। तो इस तरह से मतलब क्लास में बोला तो इतना क्लियर भी नहीं आता है, वो तो एक बार तो हम आमने सामने डिस्कस करें अगर टाइम मिलेगा तो। अन्यथा इसमें देख रहे हैं अब अभी तो इसका प्रोनाउंसिएशन सुन के कुछ करना ही नहीं है अपन को। तो क्या है, फुल फॉर्म का भी कोई लेन देन नहीं है, वो तो शॉर्ट फॉर्म ही लिखा जाता है कार्डों में। तो उसी को देके एक बार देख लेना।